one of them. And as you know, today we have amongst us as our chief guest, Mr. Athar Aamir Khan, who I don't think needs, he doesn't really need my introduction, as he is a role model to many of the aspirants of the civil services exams. Whoever aspires to take the civil services exams from J&K, Mr. Athar has been, the poster child of the civil services exam. He qualified the UPSC exam in 2016 in his very first attempt, standing second in rank. So that is a huge, huge achievement. We've called him here today so that he can have a session with you and he can share his experiences with you and you can all benefit from that. Mr. Athar Aamir is Commissioner, Srinagar Municipal Corporation, also besides being the CEO of the Smart City project. It's a particularly proud moment for us that Mr. Athar Aamir has been part of the Chanakya family. So without taking any more of your time, I now request Mr. Amit Amla, Director Broadway Education, to honor our chief guest. Mr. Amla. But they stand here with us in spirit and wishing them all the best. So, number one, rank 5, Moin Khan. Many congratulations, Moin. Mudassir Zaman, rank 53. Faizan Farooq, rank 88. Sanjeev Kumar, rank 161. Thank you very much, sir. I request Mr. Athar Aamir to share his journey and experiences with the audience and save. I must extend my gratitude to Shri Amit Amla ji and the entire Broadway team for calling me here, for giving this opportunity to me to meet you, interact with you, and also be a part of this celebration in which we are celebrating success of many of our young colleagues who will be joining the J&K Administrative Service this year. तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद. अल्लाह ताला जो है, may Allah make this as a source of, I would say, Jannat, source of blessings and peace to you and your parents. मुझे लगता है जब हमारी सिलेक्शन हुई थी तो my grandfather, I often talk about it. जिस दिन घर पे थे, then he, after a lot of people come to your home और बहुत एक माहौल सा होता है. So then in the evening he made me sit with him. And then he said, जब आप लोग पढ़ाई करते हो, and he has seen me work very closely right from बचपन से ही जब पढ़ाई करते थे 10th में. It used to happen कि मैं पढ़ाई करता हूँ तो 2 बजे आते थे कि तुम अभी तक सोए नहीं.
then I used to sometimes I shut the light off कर देता था room की whenever I would hear the noise of the door when he would come out of his room. So then एक उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ बताई जो मुझे लगता है which I am not able to forget ever. कितनी मेहनत आपने करी, ये मेहनत this should be a bias of जन्नत for you. ऐसा कभी ना हो कि इतनी मेहनत आपने जो की है पढ़ाई के दौरान ये कभी भी आपको जहन्नम की या जो है it should not take you towards that path of hell. तो the same advice I would want to pass on to you. एक जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं just like all of you उस समय ये अरमान होता है यार कहीं से हो जाए रैंक तो बात की बात है कार्डर तो बात की बात है. इवन मुझे आज ये महसूस होता है कि जितनी शायद प्रिपरेशन के दौरान मेहनत करनी पड़ती है आज उससे 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है both in terms of the pressures that you handle and also in terms of the actual hours of work that you put in. हम लोग इन दिनों जब फॉर एग्जाम्पल यहाँ स्मार्ट सिटी का काम चल रहा होता है तो रात में आना पड़ता है रात के 12 बजे 1 बजे तक we have to be there on site. We have to keep on monitoring things. वो नहीं करेंगे तो तब तक नहीं होता है. So that was a little bit of a context that I wanted to give. क्योंकि आज हमारे साथ काफ़ी सारे बाकी स्टूडेंट्स भी हैं. आई एज्यूम दैट आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो इस समय whether it's for the UPSC or for our JK Administrative Service. So मैं थोड़ा सा I'll take some minutes here with the permission of Amit ji. So 10-15 minutes I'll little bit talk about how I used to prepare. With this intention maybe there may be something in it which you may find useful. और फिर 15-20 मिनट उसके बाद I'll try to speak about the kind of work what we are doing and how in my limited capacity how I am trying to prioritize those things. So it will give you both flavor of before the exam and after the exam kind of a perspective. So does this fit with the here also? Yes. Actually, more comfortable. Is it audible and better? Okay. So सबसे पहले थोड़ा सा मैं 10-15 मिनट अपने प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा. How I used to prepare. My journey for civil services starts in the last year of my college. Initially, I was in Government Medical College, Jammu. I had joined MBBS for some time. I was there for 7-8 months. And it is a talk of year 2009. तो उन दिनों हमारा IIT JEE और EIEEE 2 सेपरेट एग्जाम हुआ करते थे और JK CET अलग होता था और बाकी AIMS and every state used to have their own separate exam. So I had initially joined the medical college, Government Medical College Jammu. I was there for some time and then after that हमारे IIT JEE का रिजल्ट आया था. Then I joined the IIT. So I got an opportunity to see both the medical as well as the engineering for some time. So when I was on the IIT में जब हम पढ़ रहे थे engineering में पढ़ाई कर रहे थे तो towards the last semester, last year, I got more into civil services and it has also a little story to it. हमारा हम जब 7th semester में थे तो we used to get something called a PPOs, pre-placement offers. That means a lot of companies and MNCs would come to colleges and they would hire you before the degree is complete. So I had got a BPO from one MNC and they had their headquarters in Mumbai. So we had this 7th semester और 8th semester के हम बीच में हमारी एक gap हुआ करती थी and between we used to have around 2 months of a vacation period. उसी vacation period में they had called us to Mumbai for an orientation program. So I went there to Mumbai to attend that orientation program. So वहाँ हम लोग 4-5 दिन थे. I could see that working in a corporate sector, working in a private sector. So it's a very reputed multinational company. A lot of talented people work there. So after 5 days, when I was coming back, I stopped in Delhi. My cousin used to work there. मैं उनके घर पे था और उस cousin का एक cousin वाजीराम में कोचिंग करता था. So he also happened to be accidentally
at the same place that day. So I somehow मैंने जो उनके स्टडी मटेरियल था, जो वो क्लास जाते थे और पेपर्स थे, I happened to gloss over those. तो मुझे लगा यार this is something which probably I should have a look at that. And that day I stayed in Delhi only, and I visited Karol Bagh, Rajendra Nagar, went to a lot of institutes and tried to explore किस तरीके से किया जा सकता है, how do we go forward. And without thinking much, I started preparation from those 2 months. उसके बाद I did not come back to home, और क्योंकि हमारी 2-1.5 महीने की छुट्टी थी, I stopped in Delhi. तो 2 महीने में मैंने वहाँ पे preparation शुरू कर दिया. And at the end of the 2 months, we had a semester to attend in our college, and I went back to college. So those 2 months, initial 2 months in Delhi, they gave me a little bit of a perspective of किस तरीके से क्या study material है, कौन सी किताबें लेनी है. There was a very good teacher who suggested that it's very important to go through the entire syllabus first, go through the previous papers, then plan your make a proper timetable, follow that timetable, and so on and so forth. And that those 2 months somehow set a little tone for my preparation. Then I went back to college. और कॉलेज इसी दौरान मैंने दिल्ली में एक I had joined a test series in Delhi. So I used to come in the weekends. So I used to get a bus in the evening on maybe Saturday or Friday, and then come to Delhi, write an exam, and go back in the Sunday night, reach college. So college हो गया, and by the end of the college we had our prelims. उस साल it was 2014. Because of elections in 2014, the prelims had been postponed. So it used to be before that, prior to that, prelims hota tha April में. But that year prelims, I think it was in August or September. It had been delayed because of the elections. So that gave me that little bit of a time to prepare a little bit more. And I appeared in that exam, and I got a rank of 500 and I think around 50 something. I don't remember it exactly. It was somewhere around 500 odd. So जब हमने स्कोर कार्ड देखा, तो my score card was I was having very good marks in general studies, and I had little less score in my philosophy optional. I had taken philosophy as an optional, and I had in fact जो select हुए थे शायद उनमें से सबसे कम marks philosophy में. क्योंकि एक ये भी था probably I did not have much time to prepare for philosophy, so that's how it went. And then at the end of the college, I then started preparing fully. और उस टाइम पे I started working on my philosophy optional again, GS वगैरह improve किया, and that is when I got that rank 2 and joined the IAS. So that was in the year 2015. So now both दोनों attempts में there was a little difference. पहले वाले attempt में we used to have CSAT, and CSAT marks were also counted as part of your prelims marks. In the second attempt, CSAT became the optional, but only the general studies marks were counted. So that's the bit of a story. Now, what are the important points which I think, which I found very useful? You know, पहले के attempt के comparison में what helped in the second attempt, how I could make such an improvement from 500 rank to rank 2. What was the broad reason to that? सबसे पहले I believe it is very very important to be very thorough with understanding the exam. और एग्जाम को अंडरस्टैंड करने के लिए बेस्ट तरीका होता है एग्जाम का सिलेबस. सिलेबस जैसे आप जब आप नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखी होगी यूपीएससी की, इट इज वेरी इलैबोरेट. इट टॉक्स अबाउट जब आप प्रीलिम्स का देखते हो, प्रीलिम्स पेपर 1, प्रीलिम्स पेपर 2, पेपर 1 के भी कौन कौन से टॉपिक्स हैं. सिमिलरली मेंस का एग्जाम देखते हो, मेंस में इट इज इवन मोर डिटेल्ड. So you again have to look at that detailed syllabus. And my sense that if there is any one thing that you should mug up, that has to be the exam syllabus. Now why is it important? Number one, it demystifies the exam for you. कभी जब आप शुरू करते हो तो ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी टॉप होगी, पता नहीं कौन सा रॉकेट साइंस होगा, whether I will be able to do it or not. पर जब आपने पूरा एग्जाम का सिलेबस एक बार दिमाग में रख लिया होता है, you get a broad perspective of things कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई जो है हार्डकोर इकोनॉमिक्स नहीं है, इसमें कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है. इट इज मोर अबाउट जनरल स्टडीज. इट्स मोर अबाउट what affects us in day-to-day life.
सो वो एक सबसे पहले डीमिस्टिफिकेशन होती है, आपको पता चलता है मुझे क्या करना है. नंबर 2, it also gives you an idea of how much time and effort it would require from your side. आपको पता है कि अच्छा पेपर 1 में these are the ये मुझे टॉपिक्स हैं, ये मेरे सब टॉपिक्स हैं, पेपर 2 में ये मुझे टॉपिक्स. यू आर एबल टू प्लान योर टाइम एंड एनर्जी इन अ मोर एफिशिएंट वे. आपको पता है आपको यहाँ से दिल्ली जाना है और दिल्ली का रास्ता ये है, आपने गूगल मैप पे देखा है. It makes it easier for you. You know where you have to stop, where you have to take a lunch break, where you have to take a power nap and then go on. So it makes it easier for you to plan. Number 3, जो मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिशियल लगा, it makes your study also, your preparation also smart. Now how does it do so? अगर आप पेपर 1 देखोगे, पेपर 1 में there is one particular portion in the syllabus called social issues. So social issues में we talk about what social issues the society is facing. अगर आप पेपर 2 देखोगे, there is one segment called social justice. So essentially what is happening is paper 1 you talk more about the problem. Paper 2 में it more talks about the solution. So जब आप फिर आंसर बनाते हो, चाहे आप पेपर 1 के बनाओगे, पेपर 2 के बनाओगे, your answers become more comprehensive. सिमिलरली एक और एग्जाम्पल, अगर आप एथिक्स का पेपर देखोगे, सो क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं, आपके पास कंटेंट इट्स मोर एब्स्ट्रैक्ट. उस कंटेंट को थोड़ा सा मोर ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको एग्जाम्पल्स बहुत हद तक मदद कर देते हैं. यू टॉक अबाउट हैप्पीनेस. नाउ हैप्पीनेस इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट थिंग. नाउ व्हेन यू bring this happiness to something very objective, say I got up early in the morning, wished my father, so that's his happiness for me. या इसी तरीके से फिर जब आप इस सब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्टिविटी की तरफ लेके आ जाते हो, so the content that you have read in your paper 1, in your paper 2, in your paper 3, that becomes the material for that exercise. Similarly, आप अगर ऐसे लिखते हो, ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है पूरे यूपीएससी एग्जाम के लिए, इवन कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, क्योंकि उसमें द वेरिएबिलिटी ऑफ मार्क्स इज वेरी हाई. जीएस पेपर 1 में somebody may get 90, somebody may get 120, somebody may get 30, but essay it is possible somebody is getting 50 marks, another one is getting 150 marks. So the kind of the span of marks when it comes to essays is very high. Again, जब आप essay बनाते हैं, where is the content that is going to come for your essays? It comes from the syllabus that you have read in your GS 1, 2, 3, 4, in your prelims, the content that you have read in your optional exam. So उस essay के लिए अगर आपको content भी देखना है, you can just close your eyes for a minute, you take any essay, what you have read in paper 1, 2, 3, 4, you can easily उसका एक पूरा format, पूरा एक pattern बना सकते हैं. So अपने जो आपका कंटेंट है, इसको बेस्ट किस तरीके से यूज किया जा सकता है, that idea again you can get when you have a good hold of that of the exam syllabus. Number 2 is very related to is the old papers. ये old paper मुझे लगता है 10th के एग्जाम में भी काम आते थे, 12th में भी काम आते थे, और even in your college life this must have been useful. They play a very crucial role in your understanding the exam and your preparation. कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. क्वेश्चन में जब आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ते हैं एंड यू आर रीडिंग, मेनी टाइम्स यू मिस आउट द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, या आप वो चीजें रिटेन नहीं करते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं. लेकिन जब आप उसी के क्वेश्चंस देखते हैं, पिछले 10 साल में 20 साल में कौन से क्वेश्चंस आ गए होते हैं, यू आर एबल टू identify, you are able to get best out of the content that you read. So again, that would be my good advice, that जितने पुराने पेपर हैं, whether they are prelims or mains, you should not miss out practicing even a single question. उसको हर किसी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें. मैं आपको इसी में अपनी फिलोसफी की एग्जाम्पल दे देता हूँ. Now ऑप्शनल सब्जेक्ट में जनरली पेपर 1 में in most of the optional subjects there is a lot of repetition. Why is the repetition? Because पिछले एक चैप्टर है, इसमें जितने भी नॉर्मली एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, उसमें पिछले 20 साल में तो उन्होंने वो पूछ लिए होते हैं, पिछले 25 साल में तो वो पूछ लिए होते हैं, एंड द नंबर इज अगेन गुड. सो वो क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करते हो, व्हेन यू प्रिपेयर आंसर्स फॉर दोस क्वेश्चंस, आपका ब्रॉडली चैप्टर का सारे क्वेश्चंस टेक केयर हो जाते हैं.
Same, this was my example, my experience is in my philosophy paper. Next, in the second attempt, what I did was I got hold of the previous 20-25 years booklet, and I wrote answers to each and every question in that booklet. So एक क्वेश्चन का आंसर, some answers could be open book. आप कभी जैसे क्वेश्चन देखा आपने, you can open a book and write a nice answer to it, make a notebook for it. What I realized जब एग्जाम आया, एक क्वेश्चन, I would say 80% of the questions were as it is, जिनकी प्रैक्टिस मैंने की थी, जिनके आंसर्स beforehand I had prepared them well, I had to just jot them down. तीसरी एक वो चीज क्या होती है, जब आप पेपर प्रैक्टिस करते हो, आपके वो I would say those neural links become very strong. आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, things flow on their own, क्योंकि आपने वो एक बार लिख दिया होता है. So my advice again for all of you would be that जितने भी subjective questions हैं, उन questions को भी जितना ज्यादा हो सके प्रिपेयर करके जाएं. अब एक चैप्टर आप 50 बार पढ़ें और उस चैप्टर के क्वेश्चंस आप एक बार लिखें. I would say it is one and the same. उससे probably it might be more beneficial than just reading the chapters again and again rather than writing the answers. Writing the answers would always be more beneficial to you. Same goes with prelims. जब आप prelims एग्जाम देखते हैं, अगर 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर कोई कर लेता है. Then there will be another 20-25 questions जो किसी को नहीं आते. Now maybe the kind of question or the particular questions could vary, but the number roughly stays same for everyone. 20-25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो पता होता सर से ऊपर ही चले जाते हैं. The game is in that middle 30-40 questions which decide whether you are in and whether you are out. And practice as much as you can. तीसरी एक और चीज है which is I would say current affairs. अब इन दिनों भी जब आप देखते हैं जो पेपर का पैटर्न which is getting changed almost every 2 years, 3 years, there is one still commonality in all. There's a huge premium on the current affairs. In fact, आपकी हिस्ट्री के काफी क्वेश्चंस they are asked precisely because they have been somewhere in the news because of one reason or the other. आपका साइंस एंड टेक पूरा है, आपका इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स के, in fact economics, lot of questions even in the mains in your economics come precisely from your current affairs. So my advice on that would again be कि current affairs को अपना एक strong point बनाना है. Now what do I mean by a strong point? Number one, you should read one newspaper every day. And reading a newspaper, my sense is that its requirement cannot be replaced by reading notes. So आप एक न्यूज़पेपर और चाहे जो आपको इंस्टीट्यूट में करंट अफेयर्स का मटेरियल मिलता हो, you can read the two. उनकी दोनों की take together make a good combination. उसका रीजन 2-3 है. एक, जब आप मैगजीन या कोई भी आपका मंथली बुकलेट होता है, इट कैन नॉट बी एज एग्जॉस्टिव एज 30 न्यूज़पेपर्स. नंबर 1, 30 न्यूज़पेपर में कंटेंट बहुत होगा, एक जो आप मटेरियल बनाओगे इट विल कवर योर मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो उससे टेक केयर हो जाएंगे. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज न्यूज़पेपर पढ़ने से ये होता है, यू डोंट हैव टू मगर थिंग्स. अब उसका व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जांपल, देयर इज अ सर्टेन केस गोइंग ऑन इन द सुप्रीम कोर्ट. अगर आप एक महीने में न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, यू कैन सी दी डिटेल्स ऑफ इट एवरी डे. जब आपने 30 दिन पढ़ा होता है तो आपके जहन में एक सिस्टमैटिकली अच्छे तरीके से बैठ जाता है, तो आपको उसको उतना ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है. और एग्जाम में, खास तौर पे मेन एग्जाम में व्हाट हैपेंस इज, इतना प्रेशर होता है, इतना टाइम कंस्ट्रेंट होता है, यू आर नॉट एबल टू रिकॉल. आपने पढ़ के गए होते हैं, वहां ब्लैक आउट हो जाता है. लेकिन ये चीजें which you have actually witnessed and experienced, they come easily in your subconscious mind. वो आपके दिमाग में तुरंत आ जाती हैं. We used to have, I always give this example. हम लोग स्कूल टाइम में होते थे, there used to be something called the National Children's Science Congress. अभी भी होता है, उसमें प्रोजेक्ट बनाते थे. उस कांग्रेस, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का एक टैगलाइन होता था. इट यूज्ड टू से, आई रीड आई फॉरगेट, आई सी आई रिमेंबर, आई डू आई अंडरस्टैंड. दिस एक्चुअली सम्स अप
the things for us. जब हम पढ़ते हैं, you will invariably forget. So nobody has that, maybe except a few people who have that super human memory. You will tend to forget, भूल जाओगे. But when you see something happening, it stays in your mind for a longer time. So this is what newspaper does for you. वो न्यूज़पेपर ऐसे चलता है एज ए तुम्हारे सामने वो कहानी अनफोल्ड होती है. You become part of that. Say, अगर हम लोग we talk about the economic reforms that happened in 90s, liberalization, globalization, etc. One particular budget which is so famous. Now somebody who was around that point of time, जिसने उसने एक्चुअल में देखा तो नहीं होगा. He must have seen it in the news, but he can tell you every nitty-gritty of that historic event. Similarly, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने से एक तो अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होती है. यू गेट डाइवर्स पॉइंट्स ऑफ व्यू. काफी चीजें जो मैगजीन में स्किप हो सकती हैं, वो आप यू आर एबल टू कैप्चर देम आल्सो. और इसके साथ में जो आप इवेंट्स, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, फॉलो एंड ट्रैक देम. और मेंस एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली या एसेज के लिए या इंटरव्यूज के लिए दिस बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. सो आई वुड इंसिस्ट अपॉन दिस कि हर दिन अपना एक जो है न्यूज़पेपर, could be Hindu, Indian Express, or whichever one you are reading, one national newspaper, and then one जो भी आपका current affairs का मटीरियल है, इंस्टीट्यूट का मटीरियल है, you follow that. और इसमें एक और अक्सर हम लोग गलती करते हैं कि you go to a स्टॉल जहाँ पे मैगजीन्स बिकती हैं, तो यू हैव एन डिफरेंट मैगजीन्स. अगर आप इस महीने के 5 मैगजीन उठाएंगे, एवरी मैगजीन विल हैव अ डिफरेंट कंटेंट. सो आपको लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेक ऑल 4. सो वो गलती नहीं करनी है. यू टेक वन न्यूज़पेपर, वन मैगजीन और वन द स्टडी मटेरियल दैट यू हैव हियर, यू फॉलो दिस थ्रू आउट द ईयर. क्योंकि जो ए काइंड ऑफ मैगजीन या ए काइंड ऑफ मटेरियल फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट होगा, that content may be, included in say nth month of the material that you are reading. So अगर हर किसी मैगजीन में इन द एंड एक साल के साइकिल में the content is going to be broadly the same. It is possible that the months may change. So you stick to one particular source of material and a newspaper and follow it religiously. और एक चीज जो मुझे पर्सनली बहुत बेनिफिट किया है कि करंट अफेयर्स को यूज करना है मोर लाइक अ टूल किट. आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप जब करंट अफेयर्स पढ़ते हो, ये जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा. इट मे हैपन दैट 90% ऑफ व्हाट यू रीड मे नॉट कम एज अ क्वेश्चन इन ईदर मेंस और प्रीलिम्स, बट द कंटेंट दैट यू हैव रेड, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड लर्न दिस टेक्निक ऑफ यूजिंग दिस कंटेंट इन डिफरेंट प्लेसेस. इट इज लाइक हाउ, फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं कोई अर्बन रिफॉर्म के बारे में कोई पर्टिकुलर चीज पढ़ी, आपने कहीं कोई पर्टिकुलर केस डिस्कस हो रहा था, उसके बारे में पढ़ा, कोई पर्टिकुलर सोशल इंसिडेंट कहीं हुआ, आपने उसके बारे में पढ़ा था, उसके बारे में क्वेश्चन नहीं आया. लेकिन पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे समवेयर देयर वुड बी क्वेश्चंस जिसमें यू कैन यूज देम एज एग्जांपल्स, जिसमें यू कैन यूज देम टू सबस्टेंशिएट. हम लोग हंगर की बात करते हैं, या से somebody talks about poverty. Now saying that this particular place is poor is one thing, and substantiating it with maybe some example or some report, something which you might have read elsewhere, makes it more substantiated, makes it more different. So एक बंदे ने अगर लिखा कि एग्रीकल्चर में हमारी ये प्रॉब्लम है कि मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, दूसरे बंदे ने लिख दिया कि एग्रीकल्चर में हम लोग मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से हमारा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के थ्रू जो मार्केटिंग होती है, दिस इज ओनली दिस परसेंट ऑफ एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट. यू सबस्टेंशिएटेड. हेल्थ इंडिसेस होते हैं, क्या है हेल्थ इंडिसेस? सो यू नीड टू डेवलप दिस टूल किट फ्रॉम योर न्यूज़पेपर्स, फ्रॉम योर करंट अफेयर्स. जो टूल किट आप अपने मेंस के आंसर्स में यू विल यूज देम wherever you think they are appropriate. You will use them in your essays. So उस tool kit को अपने पास हमेशा रखना है. और then you develop this mental maths also with a mental map in your, कि आपको social sectors में, major economic sectors के बारे में, major social issues के बारे में, you should also be aware of some basic facts and figures.
Now, why are they important? Again, they tell you the depth of the problem. Somebody talks about unemployment. Now, unemployment, okay, what kind of unemployment are we talking about? So, you talk about the rate of unemployment, you talk about labor force participation rate. So, वो चीजें आपको न्यूज़पेपर में या जो भी आप ये पढ़ते हो करंट अफेयर्स उसमें कहीं न कहीं मिल जाएंगे. So, my suggestion would be you develop एक छोटी सी अपनी नोटबुक बनाएं, maybe 10, 15, 20 pages, जिस 15-20 पेज में आपके पास एक टूल किट हो, जिस टूल किट में यू विल पुट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट नंबर्स, इंपॉर्टेंट फिगर्स, जो आप यूज करोगे अपने मन मुताबिक जहां पे आपको आपके एग्जाम्पल में समझ. दैट विल मेक अ डिफरेंस बिटवीन अ क्वेश्चन जिसके आंसर में 5 नंबर सबको आते हैं, अगर आपको 7 नंबर चाहिए, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. ठीक है. सो करंट अफेयर्स पे यू शुड फोकस हेवीली ऑन. I would say this was one of my strength points. I had done current affairs quite well. इसी के साथ I had practiced questions as much as possible. तीसरा, again syllabus with पुराने papers, I had a thorough grasp of that. That is why probably I could, in a very short span of time, I could prepare for the exam. I could clear it also. So ये चीज मैं again repeat करना चाहूँगा. And fourth and probably a final thing along with it. जो प्रैक्टिस में, आई कम बैक टू दी प्रैक्टिस अगेन, कि जब आप क्वेश्चंस आंसर लिखते हो, इज देयर अ पेपर, maybe a marker or something? If you get this one, that will also do. Huh? That is, I show you something. इसको दिमाग में रख लेना. This will help you crack your mains. ठीक है? Venn diagram हम लोग हर कोई पढ़ते हैं. So this is the question. Okay, कोई भी क्वेश्चन आप उठा लो. ये क्वेश्चन जो बना है, this is what is expected by the examiner. आपको क्या लिखना है? और जब हम अपनी शुरुआत करते हैं आंसर राइटिंग की, और जो हम लोग आंसर इनिशियली लिखते हैं, हमारा आंसर ऐसा होता है. मुद्दे की बात ये होती है, फालतू चीजें बहुत सारी होती हैं. और अगर वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें मिलते हैं 1.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि ओनली दिस वाज द पोर्शन व्हिच वाज टू द पॉइंट. जब आप प्रैक्टिस करते हो धीरे धीरे, यू मोस्ट ऑफ द पीपल रीड समवेयर हियर 3 आउट ऑफ 10. फिर नेक्स्ट कम्स पीपल जो पहुंचते हैं यहाँ 5 आउट ऑफ 10. सो दे गेट एन इंटरव्यू कॉल. ठीक है. नाउ द गोल इज टू रीच समवेयर हियर, maybe let's say 7 out of 10 or 8 out of 10. And these people qualify, and if they get a good score in interview, they get a top rank. Okay? And this happens only when you practice. जब आप प्रैक्टिस करते हो कि कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर आप देखोगे जैसे जनरल टेंडेंसी, व्हेन यू स्टार्ट आप बहुत इंट्रोडक्शन बहुत लंबा लिखते हो. से कोई भी एग्जाम्पल इज से लेट्स से आर रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर in sync with the modern times or in sync with the year 2023. Now somebody would start saying पहले agriculture ये है, agriculture वो है, agriculture ये है. So he spends lot of times talking about what is agriculture and what we are doing. But the question is about agriculture reforms that have been done and whether they are in sync with the requirements and demands of today. So मुद्दे की बात पे पहुंचना है. और आप लोग मुद्दे की बात पे कैसे पहुंचोगे, दैट इज व्हाट दिस प्रैक्टिस विल हेल्प यू. सिमिलरली जब आप एग्जाम ये लिखते हैं, सो जब हम फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 20 क्वेश्चन होते हैं या 25 क्वेश्चन होते हैं मेंस के पेपर में, सो यू हैव रफली अराउंड 9 or 7 minutes for one question.
रफली, है ना? अक्सर क्या होता है, अगर 20 क्वेश्चन है तो जब आप कहानी लिखने लग जाते हो तो इनिशियली यू राइट बिग आंसर्स टू दी, सारा ध्यान पहले वाले क्वेश्चंस में चला जाता है। सो इवेंचुअली 20 में से आप 14 पे अटक जाते हैं, 15 पे अटक जाते हैं, तो लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके रह जाते हैं। वो 5 रह गए तो यू आर इन एनी केस आउट ऑफ द रेस। नाउ हाउ डू यू एंश्योर कि 20 में से यू राइट आंसर्स टू 20 और 20 and the quality of your last answer, the 20th answer, 20th question is not much different than the quality of your first answer. That happens when you practice. ठीक है, एक तो पहला किस चीज से आ जाएगा? The first thing will come when you start practicing individual questions, and this thing will come when you start practicing full length papers. So ये बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, ज्वाइन ए टेस्ट सीरीज, अटेंड दैट टेस्ट सीरीज विदाउट फेल। आपने अगर पढ़ाई की है फाइन, नहीं किया है तो भी जाके पढ़ाई करें, तो भी जाके आप जो है टेस्ट लिख। जितना आपको टेस्ट से फायदा होगा, जितना आपको टेस्ट लिखने से फायदा होगा, उतना फायदा आपको साल भर के क्लासेस से, साल भर की पढ़ाई से नहीं होगा। ठीक है, सो दैट इज what you should do. Rest, I'm sure. A last point before we close this portion is timetable and timeliness. So अक्सर फिर से क्या होता है कि next page पे you know say let this be days, let this be time. And this is what happens. Human nature, हमारा जो एक मोटिवेशन लेवल होता है, it is never same. कभी बड़ा इंसान मोटिवेटेड फील करता है, you want to keep on going. तो मोटिवेशन आ गई, something one starts to work. अगर 1 घंटे है तो 18 घंटे पढ़ने लग जाएंगे. Then eventually what happens? अगले दिन कुछ होता है, this finally dies down. किसी दिन डांट पड़ी तो वापस. This should not happen. होना क्या चाहिए? If it is 10 hours, whatever, जो भी depending on this, it has to be consistent. So consistency is the key. Consistent. कि आज मुझे 10 घंटे पढ़ना है, कल आफत आ जाए, तो आ जाए, जो भी हो, tomorrow I'll again study for 10 hours. इसको मैं नीचे होने नहीं दूंगा। आज मुझे, मैं गया एग्जाम लिखा, I got good marks and motivated to learn better. कल बिल्कुल फेल, कुछ नंबर नहीं आए, 100 में से 10 नंबर आए, but I will still do this 10 hours. ये आपकी तरफ से कमिटमेंट रखनी है। Now this consistency does not come by default. ये ऐसे नहीं होगा कि भाई आज मैं 10-10 घंटे रोज पढ़ूं। It will come with routinizing certain things. रूटीन हम बोलते हैं ना, रूटीन कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट दिस इज हाउ वी आर प्रोग्राम्ड एज ह्यूमंस। रूटीन का मतलब क्या हुआ? अगर आपका दिन है, यू हैव टू फिक्स सर्टेन थिंग्स सो दैट यू डोंट हैव टू पुट एन एफर्ट इन प्लानिंग। समझे? रोज प्लान करना पॉसिबल नहीं होता है, रोज टाइम टेबल बनाना पॉसिबल नहीं होता है। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टिक टू दैट। यू हैव टू डेवलप हैबिट्स। जैसे मेरी एक आदत थी, आई यूज्ड टू गेट अप 7 o'clock, 7 AM इन द मॉर्निंग, और 7:30, 7:45 में लाइब्रेरी रीडिंग रूम चला जाता था। ना जो 10 दिन किया उसके बाद ये आदत हो जाती है। सो फर्स्ट थिंग आई वुड डू एट से 8 o'clock when I would start, I would do the newspaper from 8 to 9:30. न्यूज़पेपर, और इसी के नोट्स भी, आई यूज्ड टू मेक नोट्स आल्सो बिटवीन दिस टाइम। नाउ हर दिन क्या हुआ? न्यूज़पेपर का टाइम फिक्स हो गया। अब क्या न्यूज़पेपर या इसका, अगर आपने एक दिन सोचा मैं बाद में पढ़ूंगा, वो बाद में सॉल्व कभी नहीं आता है। फिर अगले दिन आपका शाम बच जाते हैं, तो अच्छा मैं फिर कल पढ़ूंगा या कल पढ़ूंगी, व्हाटएवर। सो रूटीनाइज सर्टेन थिंग्स इन योर डेली टाइम। सिमिलरली अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है,
have some fixed time for that answer practice. Preferably in the morning जब आप शुरू करते हो, because energy levels are high, उसमें वो काम रखने चाहिए which you find little difficult and uneasy to do. हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ना आसान है, न्यूज़पेपर में थोड़ा एफर्ट लगता है. न्यूज़पेपर में आपको नोट्स बनाना है. प्रैक्टिस लुक्स लिटिल स्कैरी. मुझे भी डर लगता था, सबको डर लगता है. जिस चीज से आपको डर लगता है, जो चीज आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, keep that the first thing part in the morning. उससे क्या होगा, एक तो मुश्किल काम आपने अपनी हाई एनर्जी टाइम में निकाल दिया. दूसरा, once you have read the newspaper, once you have done the practice, if it is 2 o'clock, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट डेली आएगा कि मैंने कुछ किया. पढ़ के चैप्टर खत्म करके सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं आता है. प्रैक्टिस करके, और जब आप कोई टेस्ट पेपर सॉल्व करते हो, टेस्ट पेपर सॉल्व करने के बाद वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है. जब आप कोई टेस्ट देने आते हो, यहाँ क्लासेस में आते होंगे या कहीं पे, फिर वापस आते आपको ऐसे एक्चुअली यू फील यू हैव अकम्प्लिश्ड समथिंग. सो रूटीनाइज सर्टेन थिंग्स. और फिर शाम को फिर यू कैन, बाकी जो है आपकी कौन सी बुक आपको किस दिन पढ़नी है, यू कैन प्लान दैट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ. एक देयर आर 2 ways जनरली पीपल डू. कुछ लोग करते हैं, कुछ दिन हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर कुछ दिन ज्योग्राफी पढ़ेंगे. माय एडवाइस ऑलवेज वुड बी टू रीड थिंग्स इन पैरेलल. उससे क्या होता है, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा क्लासेस में, इट वुड नॉट बी पॉसिबल. जो क्लासेस यहाँ होंगी उसमें इट वुड बी प्रॉब्ली कि कुछ दिन आपका हिस्ट्री चलेगा, उसके बाद कुछ दिन उनको टॉपिक्स भी खत्म करने होते हैं, कुछ दिन आपका शायद ज्योग्राफी. आई एम नॉट श्योर हाउ इट इज हियर, but irrespective of how it is in the class, when you are studying at your home, you ensure there is continuity. अगर आपने हिस्ट्री 20 दिन पहले पढ़ी है, 20 दिन के बाद पढ़ोगे तो भूल जाओगे सारा. लेकिन 1-2 दिन या इमीडिएट साथ में पढ़ते रहोगे, कंटिन्यूटी मेंटेन करोगे, so it will be easy for you to do this. और लास्ट में अगेन नोट्स, they save you a lot of time and lot of effort. आपका जो मटेरियल है, फॉर एग्जाम्पल आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो, यू विल बी रीडिंग फ्रॉम 5 sources. It will not, you will never get the same time. जो ही आप एग्जाम के नजदीक जाते रहोगे, every day you will have more content to read and less time available to you. So उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए जितने ज्यादा नोट मेकिंग अभी से करोगे, उतना ज्यादा आपको आसान हो जाएगा. खुद के नोट से एक तो याद भी रहता है, जहन में भी जल्दी आता है, अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होती है, और उन नोट्स को रिवाइज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है. सो अभी अगर आपको अपने पूरे बुक से जो आपने जितना भी कंटेंट उससे आप अगर आप पढ़ते हो, इफ यू रिवाइज फ्रॉम, इट मे टेक यू किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पूरा दिन, बट अगर आपने नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स से करने में इट विल टेक यू 2 hours. तो जब नेक्स्ट रिविजन करोगे यही नोट से, इट विल टेक यू मे बी हाफ एन आवर. यू विल रीच अ पॉइंट एक्चुअली जहां पे यू जस्ट फ्लिप योर बुक और आपके दिमाग में रहता है पूरी चीजें, जस्ट बाय फ्लिपिंग. अच्छा, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू. एंड आई हैव सीन इट माय सेल्फ आल्सो कि पूरे चैप्टर, पूरे जितना पेपर है, पूरे पेपर का सिलेबस एंड नोट्स आई कुड रिवाइज देम विद इन द ब्रेक बिटवीन फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर. कि इतना आपने नोट्स इतने बनाए होते हैं, उनको इतनी बार आपने रिवाइज किया होता है, सो इट सेव्स यू लॉट ऑफ टाइम. सो इफ आई हैव टू समराइज एंड सम अप, so broadly I would say, number 1, syllabus को अच्छे से मैप करो, अच्छे से दिमाग में. Number 2, practice old papers या model papers, whatever you have. Number 3, I would say notes and revision. Number 4, I would say current affairs. Again, reading is not enough. Notes and make a toolkit of it. ये जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कर लेना. मुझे this is what I think is the sum and summary of what I used to do. It maybe आप बाकी साथी हैं, maybe they will also share over a period of time things with you how they did it. Maybe
कुछ चीजें वो they might have done in a better way, but this is what I found really useful when it comes to broad preparation. ठीक है, so I think we have already exceeded a lot of time, so we'll close this portion here and just give you a little overview after this. कि once you have done your exam, once you have joined in your academy, you get trained for a couple of years. That training is again very very important. कि उस ट्रेनिंग में आपको सब कुछ पढ़ा दिया जाता है. एक लॉयर 3 साल या 5 साल में पूरा लॉ पढ़ता है. You have to read all those everything in law, CRPC से लेकर IPC से लेकर CPC से लेकर all the individual laws also within that period of time. You have to economics से आपको economics के लिए well versed होना पड़ता है. Public policy होती है, government programs होते हैं. You have to learn all of that. Media management, you have taught everything. Discipline, सुबह 5 बजे उठना है, दौड़ भाग करना है. That again is taught to you in the academy. They do a lot of बड़ी मेहनत वो लोग करते हैं, बहुत पर्सपेक्टिव्स देते हैं. इनफैक्ट जब हम लोग इमीडिएटली निकलते हैं एकेडमी में, इनिशियली लगता है कि यहाँ पता नहीं कितना फायदा था यहाँ आने का, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू सिट बैक समवेयर, कहीं कोई इशू आता है, यू आर इजीली एबल टू ग्रास्प इट. तो इमीडिएटली इंसान को समझ नहीं होता है, हार्ड पूरा अंडरस्टैंड इट, बट इन द बैक ऑफ द माइंड इज दैट ट्रेनिंग. वो जो पीछे आपने पढ़ा है, जो वहाँ पे आपने IPC, आपको इंडिविजुअल सेक्शंस यू मे नॉट रिमेंबर, बट यू नो द ब्रॉड इश्यूज, यू नो द ब्रॉड कंसर्न्स. इसलिए कहीं गड़बड़ की होती है, you will not remember the section of CRPC which covers it or section of IPC which covers it, but you know this is a crime, and there would be some section in IPC or some section in CRPC which covers that. So that is again it becomes very important. And finally जब आप आते हो फिर से वही चीज, हम सब लोग इसी स्ट्रगल से, इसी मेहनत से आए हैं कि we should be able to do something good, we should be able to make some kind of difference wherever we are. और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और कई बार मुझे लगता है काफ़ी सारे sometimes we are not able to clear the exam, but again exam या clear करना, IAS या KAS ज्वाइन करना ही दुनिया नहीं. I have seen people who are literally regretting why they joined. ये तो it's become a cliche, but जितना ज़्यादा इस पे बोला जाए, जितना ज़्यादा इसकी importance होती है, the power of a civil servant comes from his integrity. मैं आपको एक example बता देता हूँ. For example, we are working on Lal Chowk. Now, when we go to the site, या when I go to the site, I'm able to shout or I'm able to the contractor or anyone. But where is that power to shout or power to take him to task? Where does it come from? It comes from the fact that one's integrity is beyond doubt. One has ensured that भाई मुझे काम से मतलब है. This is what we have to do. Similarly, when you have people in the chain of command, when you have people down the line, you are able to take work them not because you are their superior, but because of your integrity. And so this is again, I think, something I want to say, that the power of the civil servant does not come from the pen, it does not come from the legal, or it does not come from the authority or the orders which has appointed him. It simply comes from his own hard work and own integrity. वहाँ से ये नीचे फ्लो होता है. So और हम जब पब्लिक सिस्टम्स में होते हैं, everyone knows everything about everyone. आपके मैं SMC में हूँ, so जो हमारे अगर 4000 सफाई कर्मचारी हैं, 3000, every सफाई कर्मचारी knows how his or her commissioner is. Everyone knows. ये इस तरीके का we live in those public setups. So मैं फिर से वही चीज, that one has to be very honest, one has to be efficient. Honesty बिना efficiency के again it is not of use. ये जब तक काम नहीं होगा, जब तक सर्विस डिलीवरी नहीं होगी, जब तक आपके होने से कोई फायदा नहीं होगा, तब तक ये जो आपका जो काम है वो तो कोई अल्गोरिथम भी कर लेगा, जो रूटीन वाला काम होगा. सो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे. एंड जिस चीज के लिए, जिस नियत के साथ आप लोगों ने शुरू किया है, और उसी नियत के हिसाब से अल्लाह ताला guides you towards success, और आप अपने लिए भी, अपने माँ बाप के लिए भी
बाई से रहमत और बाई से जन्नत रहे, और let everyone and this academy and the places where you come from, they be proud of what you do, not only with respect to the exam but also in your life. Thank you. होती है ना, 90% कैंडिडेट्स की जर्नी इसमें कोचिंग भी आएगी, इसमें एवरीथिंग, इसमें डिप्रेशन आता है, इसमें हार्ट ब्रेक्स आते हैं, मैनी थिंग्स है। ये जब ये देखो ना, तुम जाना कहाँ से, कितनी कर्व्स है, इसमें 5 साल लग जाते हैं, तब तक हम हो गए होते हैं 30 के। हमने JKSSB में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में कुछ अकाउंटेंसी अलग था, वो तो JKPSC में था ही नहीं, वो पढ़ा ही नहीं होता, हम उसमें भी फेल होते हैं। These are talking about me. No, I'm not talking about you. You just don't take it. Otherwise, I'm just telling you, एक जनरल कैंडिडेट मैं भी हूँ, मैं I have also filled the JKSSB forms. मैंने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था ना, आज अभी कुछ देर पहले मैं फोन पे टेक्स्ट देख रहा था, somebody told me कि उसका रिजल्ट आने वाला है। मैंने 2 बार एग्जाम दिया हो, ठीक है, JKSSB एग्जाम। मेरा पहली बार भी हो गया, आई क्वालिफाइड इट विद गुड मार्क्स, एग्जाम क्रॉस हो गया, ठीक है। अब मेरे हाथ में था उसको कुछ, मैं क्या कर सकता था? नथिंग। मैं इधर जाता इस रूप में, अब नहीं भाई कुछ नहीं हो सकता यहाँ, तो फिर मैं यहाँ पहुंचा ही नहीं होता, मैं उसी रूप में रह जाता। बट वी पीपल डू इट। अब आज दूसरी बार ये वाला रिजल्ट मेरा आ गया, मैं अब फिर से सिलेक्ट हूँ उसमें आज, इवन तो आई डोंट जॉइन इट नाउ, बट जो मेहनत थी ना, मैं तुम लोगों को इतना बोलूंगा, वो कभी जाया नहीं होती है, ठीक है ना, वट एवर एग्जाम यू गो फॉर। हमें लेकिन अब इस स्ट्रैटेजी में, मतलब तुम्हें नहीं कैसे नहीं जाना है, दैट्स व्हाट आई वुड बी टॉकिंग अबाउट, राइट। हमें ऐसे आना है, लेकिन हम हुए जम्मू कश्मीर के लोग, और कश्मीरी खासतौर पर, मोस्टली उर्दू कश्मीरी पीपल, ठीक है, सीधा हम चलेंगे नहीं कभी भी, है ना, वो कोई नहीं चल सकता हम से। हम क्या करते हैं, सीधा क्यों नहीं चलेंगे? इट्स नॉट कि हम वी आर एफिशिएंट, हम अफसर भी हम में से ही है, वो सीधे चल लेते हैं, ठीक है। व्हाट वी डू इज, हमारी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन की होता है। अभी तुम लोग ये लेक्चर सुन के जा रहे हो ना, अथर सर का सुना तुमने, मेरी तो बात ही छोड़ो, मतलब अथर सर का सुन के यू शुड बी मोटिवेटेड इनफ। पता होगा क्या, अभी इट्स अराउंड 2:30, 5 बजे तक तुम घर पहुंचोगे, मोटिवेशन कितनी हाई होगी आज, है ना, यंग पीपल बकवास कर रहे हैं तुम्हारे सामने, समथिंग लाइक दैट, राइट। अभी मेरे भाई भी बोलेंगे, 5 बजे तुम बोलोगे, अब 8 बजे से 2-3 घंटे रेस्ट, 8 बजे से आज लक्ष्मीकांत के 3 चैप्टर खत्म, और फिर आज समथिंग, फिर तुम्हें कल चाणक्य की क्लास होगी, तुम शाम को 1 घंटा पढ़ोगे, बोलोगे आज थक गए, अब कल क्लास देख के पढ़ूंगा, और हमारे ऐसे ही निकल जाते 6-7 महीने तो इसी में चले जाते हैं। दिस इज प्रोक्रेस्टिनेशन जो हमें होती है, भाई मेरे साथ भी होती थी, समझा मैंने कोचिंग नहीं ली है, ठीक है, तो कोचिंग वाला वो 2-3 घंटे का मुझे नहीं पता, वो हाउ यू मैनेज, यू पीपल मैनेज दैट। मेरी जर्नी कुछ ऐसे रही, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जिंदगी में सैड तो होता है, अब अगर ऐसे जाना है, दिस इज आई वुड से वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट ऐसा नहीं कि दिस इज अनअटेनेबल। जैसे अथर सर की जर्नी इट आई कैन नॉट से, मैं तो उनका कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इट वाज स्मूथ, मतलब उन्होंने एग्जाम दिया फर्स्ट अटेम्प्ट, लाइक समथिंग लाइक दैट। अब लेकिन अथर सर की जर्नी, उनको जो जैसे वो बोल रहे थे ए से बी तक, उनको पता था जाना कैसे है, ठीक है ना, एटलीस्ट तभी वो रैंक, मतलब उस रैंक पे आ सकते। मेरी जर्नी ऐसी रही, सैड वाली थोड़ी सी, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वाले प्रोसेस पे नहीं गया। अब मैं वहां पे कैसे नहीं गया, बिकॉज आई न्यू कहां से क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, तुम जैसे लेट्स टॉक अबाउट, मैं सिलेबस को जो लेट्स टॉक अबाउट प्री फर्स्ट, राइट, तो मैं सिलेबस को सब बोलते हैं कि सिलेबस याद करना, मैंने कैसे याद किया, मैं उसको बोलता हूँ बिग 5, ठीक है, प्री के सिलेबस को बिग 5। तो व्हाट इज बिग 5? मैं बोलता हूँ कि दिस इज पॉलिटी, दिस इकोनॉमिक्स, व्हाट एल्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, 1 2 3 4 5 आ गए ना। नाउ तुम लोग बोलोगे साइंस एंड टेक कहाँ रखा है इसमें, आया कहाँ रखा, ओके ना, वो भी सब्जेक्ट्स, लेकिन व्हेन यू सी द सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स, ये 5 सब्जेक्ट जो है, अगर आपको इन सब का स्टैटिक पता है ना,
स्टैटिक इनमें से ही आने वाला है, साइंस एंड टेक की बात नहीं। इसमें अगर 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेट्स से 15 आते हैं, उनमें से 12 सवाल हमेशा करंट अफेयर्स में से होंगे, बी यूपीएससी और जेकेपीएससी। लेकिन पॉलिटी की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2022 के पेपर की बात करो, देयर वाज अ क्वेश्चन, प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है, ठीक है? ये डायनामिक क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है। अब मेरे पेपर में 2022 के प्रीलिम्स में देयर वर सम 15 क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी, एंड आई कैन बेट अगर आप घर जाके देखोगे ना, इसमें से 10 सवाल जो है वो सीधे स्टैटिक के हैं और लक्ष्मीकांत से भी सॉल्व हो रहे थे। फॉर एग्जांपल देयर वाज अ क्वेश्चन, द सेपरेशन ऑफ पावर्स इज अ कॉन्सेप्ट, राइट? वो किसने दिया था? देयर वाज अ फ्रेंच जज मोंटेस्क्यू बोलते थे उसको, ठीक है? वो भी लक्ष्मीकांत में था क्वेश्चन, नोट्स एंड रेफरेंसेस में था, पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 1 के नोट्स एंड रेफरेंसेस में, ठीक है? तो वो वहां से, मतलब यू कुड हैव फाइंड दैट। बोलने का ये मतलब है, जब तक आप बिग फाइल का स्टैटिक नहीं पढ़ोगे और आपको पता नहीं है कि कहां से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, आप इस एग्जाम में कभी मतलब जो डायरेक्ट वाला पाथ है उस पर चल ही नहीं सकते हो, जो मैंने मिटा दिया अभी, ठीक है? यू वुड ऑलवेज बी इन दैट क्लटर्ड पाथ, ठीक है? तो जस्ट अगर आप कोचिंग आ रहे हो ना, कि आप चाणक्य में आ रहे हो, दिस इज द बिग एकेडमी, मतलब यू हैव लॉट ऑफ टीचर्स जिनमें बहुत अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशंस है उनके पास। कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो बता दो मुझे, ठीक है? ताकि तुम्हें टारगेट रखो कि यार मेरे पॉलिटी में टोटल 50 टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल मैं इनको पढ़ रहा हूं, पहला तो होता है रीडिंग, ठीक है? और उसके बाद फिर मैं इनको रिपीट कर रहा हूं और फिर से रिपीट कर रहा हूं। दिस इज अदर स्ट्रैटेजीज को RRR बोलते हैं, और दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट एनीबॉडी वुड टेल यू, जो भी एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है। अगर तुम्हें कोई बोल रहा है कि मैंने रिपीट नहीं किया था, तो तुम्हें झूठ बोल रहा है। इस एग्जाम का मंतव्य ही यही है, इफ यू वांट टू क्वालिफाई, आपको पहले पढ़ना है, द फर्स्ट रीडिंग, द सेकंड रीडिंग, एंड देन यू हैव टू रिपीट एंड रिपीट। अब लेकिन कैसे रिपीट करोगे तुम? अब एक दिन मैंने पॉलिटी पढ़ी लक्ष्मीकांत से, दूसरे दिन मैं खोल रहा हूँ DD बासु, तीसरे दिन मैं खोल रहा हूँ पतंग चाणक्य के नोट्स। हो पाएगा रिपीट? डू यू थिंक होगा? नहीं होगा। अगर तुम इधर से पढ़ रहे हो, जस्ट रीड फ्रॉम दिस सोर्स, हो गया खत्म। पॉलिटी आप यहां से पढ़ रहे हो, जस्ट रीड इट फ्रॉम हियर। तुम DD बासु से पढ़ रहे हो, जस्ट रीड इट फ्रॉम हियर। हाँ, आप बोलते हैं लोग कुछ थोड़ी सी हमें एनरिचमेंट्स करनी होगी, तो मुझे एक बात बताओ, मतलब पहले जब जिसको ये नहीं पता है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है, वो एनरिचमेंट क्या करेगा, ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग शुड बी, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है हमारी, जैसे पॉलिटी में द बाइबल इज लक्ष्मीकांत, राइट? इफ एनीबॉडी ऑफ यू जिसने स्टार्ट की है प्रिपरेशन, उसको सबसे पहले रखना चाहिए दिमाग में टारगेट कि मैं लक्ष्मीकांत को जो है वो पढ़ लूंगा, ठीक है? देयर आर सम चैप्टर्स जैसे फंडामेंटल राइट्स है, देयर इज प्रेसिडेंट, देयर इज पार्लियामेंट, इनमें से डेफिनेटली आपके प्री में क्वेश्चन आएंगे, बी इट फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स और केएस प्रीलिम्स, ठीक है? तो जस्ट डिफाइन योर सिलेबस फर्स्ट। सिलेबस में बस इतना लिख के है कि करंट एंड समथिंग इंटरनेशनल इवेंट्स ऑफ करंट अफेयर होता है, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स ऑफ करंट अफेयर्स। हाउ वुड यू डिफाइन दैट नाउ? कौन से इवेंट? अब आप एक पर्टिकुलर, जैसे अथर सर ने बोला, एक पर्टिकुलर मैगजीन पकड़ लो, उसमें मैंने विजन से किया था, ठीक है? जो मंथली होता है विजन का मंथली, मैं साइंस एंड टेक कैसे प्रिपेयर करता था, आई वुड लेट यू नो। मैंने कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी साइंस एंड टेक के लिए, नथिंग। मैं मंथली मैगजीन्स लाता गया और मेरे लिए साइंस एंड टेक का हर महीने एक चैप्टर होता था मंथली मैगजीन में। विजन में एक चैप्टर होता है लास्ट में साइंस एंड टेक का, तो उसमें बहुत से टॉपिक्स होते हैं, राइट? जैसे अगस्त का महीना है, देयर वुड बी चंद्रयान, देयर वुड बी आदित्य L1, और मैं उसको भी हाईलाइट करता था एक हाईलाइटर लेके, कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आज भी याद है, आई वुड शेयर दिस थिंग विद यू। मेंस हमारा फेब्रुअरी में था, ठीक है? जब मैंने जनवरी में विजन की करंट पढ़ी, देयर वाज दिस, मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मैंने इंडेक्स खोला विजन की मैगजीन का, ठीक है? इंडेक्स होता है, पहले उसमें ऐसे होता है पॉलिटी, फिर पॉलिटी के टॉपिक्स, देन IR, फिर IR के टॉपिक्स, फिर एनवायरनमेंट। मैंने देखा यार इकोनॉमी में एक टॉपिक है मून लाइटिंग, ठीक है? मैं सोचूं ये क्या मून लाइटिंग, मतलब चांद पे बल्ब चलाना है। अगर मेरे कोई मेंस में आया होता, मैं क्या लिखता उसमें? कुछ भी नहीं, मतलब नथिंग। तो मैंने देखे टॉपिक्स, मैंने बोला रादर देन मैं इनको पढ़ूंगा करके, पहले देखो मून लाइटिंग पता ही नहीं, मैं पहले मैंने पेज खोला, देखा कि मून लाइटिंग क्या होता है, ठीक है? उसको याद रखा, तो उस टॉपिक को अपने नोट्स पे लिख दिया कि मून लाइटिंग मुझे बिल्कुल पता ही नहीं है। देयर वाज वन मोर टॉपिक, जियोग्राफी। बीइंग ए सिविल इंजीनियर, मैं वो बंदा था, मुझे पता ही नहीं था मास वेस्टिंग क्या होता है। मैंने लैंडस्लाइड्स पढ़े थे, ठीक है? जियोटेक इंजीनियरिंग पढ़ी है, ठीक है? अगर मेन में क्वेश्चन आता कि राइट डाउन ए नोट ऑन मास वेस्टिंग, मैं शायद सीवेज का वो कुछ लिख देता कि डंपिंग साइट्स में कुछ ऐसा, ठीक है? तो वो भी मुझे करंट अफेयर की मैगजीन से पता चला। तो दिस इज
मतलब हाउ यू रिलेट करंट को स्टैटिक के साथ। इवन तो मैंने पढ़ा हुआ था वो चैप्टर्स, लेकिन शायद मेरा ध्यान उन चीजों पे नहीं गया था, ठीक है ना। लेकिन